اس یوٹیوب چینل پر آپ کامیابی کے فارمولے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، کیریئر کاؤنسلنگ اور ٹیلنٹ ڈسکوری کی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، تو اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اسے اپنے کیریئر کا حصہ بنا لیجئے۔ یہ ہمیشہ آپ کو بتاتا رہے گا کامیابی ہوتی کیا ہے اور ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں HM زکریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل انفارمیشن پوائنٹ۔ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر ظفر عباس صاحب موجود ہیں۔ یہ PhD ڈاکٹر ہیں، ملنسار اور شاندار انسان ہیں۔ ریسرچ یعنی تحقیق، یہ ان کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ ریسرچ کے اوپر یہ گرپ رکھتے ہیں۔ ان کے سینکڑوں نہیں ہزاروں سٹوڈنٹس ہیں جن کو یہ ریسرچ سکھا چکے ہیں۔ یہ ریسرچ ہے کیا اور سٹوڈنٹس اپنے تھیسس کیسے لکھ سکتے ہیں، یہ ٹیکنیکلی باتیں ہمیں آج بتائیں گے۔ آئیے آج ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے سر؟ اللہ کا احسان ہے، زبردست۔ سر یہ BS کے سٹوڈنٹس آخری اپنے سیمسٹرز کے اندر کچھ تھیسس لکھتے ہیں، تو اس کے لیے ان کو ریسرچ کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ریسرچ ہے کیا اور اس کا اسکوپ کیا ہے؟ دیکھیں، ریسرچ بہت زیادہ اہم ہے اس دنیا کے اندر، اس زندگی کے اندر۔ جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہی ریسرچ ہے۔ اس کی میں آپ کو اگزامپل دے کے سمجھاتا ہوں۔ جیسے آپ نے کہا کہ ریسرچ کیا ہوتی ہے، تو ریسرچ ایک پروسیس کا نام ہے جس کے ذریعے سے ہم سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ہمیں زندگی کے اندر دو قسم کے مسائل ہمیشہ درکار رہتے ہیں۔ نمبر ایک، سروائیول۔ سروائیول سے کیا مراد ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کی بقا کیسے کرنی ہے، ہم نے باقی کیسے رہنا ہے، ہم نے زندہ کیسے رہنا ہے۔ اور نمبر دو، ڈیولپمنٹ، یعنی ہم نے پروگریس کس طرح سے کرنی ہے۔ تو ریسرچ کا کام انہی دو کے ساتھ ڈیل کرنا ہے۔ یعنی ریسرچ کے ذریعے سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ انسان نے باقی کس طرح سے رہنا ہے۔ اب مثال آپ کی اس کی دیکھ لیں کہ آپ کو ہم نے میڈیسن میں کتنی ترقی کر لی ہے، کتنی زیادہ بیماریاں تھیں جن کا پہلے علاج نہیں تھا اور اب ان کا علاج موجود ہے، اور مزید بھی اس پہ تحقیق کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے جب ہم ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو انسان نے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، زندگی میں سہولیات لانے کے لیے بہت کچھ کیا ہے، اور یہ کس چیز کے ذریعے سے ممکن ہوا ہے؟ صرف تحقیق سے، یعنی ریسرچ سے۔ ریسرچ کی ہی مدد سے آج یہ ہم موبائل فون یوز کر رہے ہیں، ریسرچ کی ہی مدد سے ہم گھوڑوں کی سواری اور خچر کی سواری سے گاڑیوں پر آئے ہیں، اور گاڑیوں سے پھر لگژری گاڑیوں پر، اور پھر ایروپلینز پہ وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے کس حد تک ترقی کی ہے، یہ سب ریسرچ کی بدولت ہے، یہ تحقیق کی بدولت ہے، ریسرچ کی بدولت ہے۔ تو اب جیسے کہ آپ نے دوسرا سوال کیا کہ اس کا سکوپ، اہمیت کیا ہے، تو جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کی انسانی زندگی کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں ایسٹرن ورلڈ کا ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ، اور ہم جب ویسٹرن ورلڈ کی ترقی پر نظر ڈالتے ہیں تو ان میں جو ہمیں سب سے اہم چیز نظر آتی ہے وہ تحقیق ہوتی ہے۔ یہ تحقیق کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ یعنی کوئی سٹوڈنٹس یا کوئی پروفیشنل کیسے اپنی تحقیق کو شروع کرے؟ دیکھیں، تحقیق کا آغاز دو چیزوں سے ہوتا ہے۔ دو چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ نمبر ون، واٹ ہیز آلریڈی بین ڈن، یعنی پہلے کیا ہو چکا ہے، یعنی کہ جس کو ہم اگر اسٹوڈنٹس کے تناظر میں کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں لٹریچر ریویو۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا کام ہو چکا ہے، جس ٹاپک پہ، جس پرابلم کو میں سالو کرنا چاہ رہا ہوں اس پہ پہلے کن لوگوں نے کیا کام کیا ہوا ہے، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، اور پھر اس کام کو ہی دیکھنے سے ہمارے اندر سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور ہم اسی طرح سے انہی سوالات سے ہی ہم اپنی ریسرچ کا پھر آغاز کرتے ہیں۔ بیسیکلی ہم ریسرچ کے اندر انہی سوالات کے جواب ہی تو ڈھونڈتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر میں آپ کو ماضی کی مثال دوں، جب ہم بات کرتے ہیں سقراط کی، ہم جب بات کرتے ہیں ارسطو کی، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑے محقق تھے اور انہوں نے بہت ساری تھیوریز پیش کی، جب ہم بات کرتے ہیں
हमारे स्टूडेंट्स भी इन चीज़ों को सब जानते हैं। तो उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने कायनात को देखा कि ये है, फिर उनके जहनों में मतलब पहले से क्या चीज़ मौजूद है, पहले उन्होंने उससे लर्न किया और फिर उनके जहनों में सवाल पैदा हुआ और फिर उन्होंने उन्हीं सवालों का जवाब ढूंढा। तो ये माजी में भी ऐसा था, दौर जदीद में भी रिसर्च ऐसी ही है। हमारे जहनों में पढ़ने से ही सवालात पैदा होते हैं। यानी कि आम तौर पर जो ले मैन होता है वो क्या समझता है, वो ये समझता है कि बस मैं अचानक से कोई चीज़ ईजाद कर दूंगा, मैं अचानक से कोई नई थ्योरी पेश कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। पहले क्या हो चुका है उस टॉपिक पे, या पहले से कुछ सीखना होता है, पहले सोचना होता है, समझना होता है, फिर मसाइल को हल करना होता है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको एक और बात बता दूँ। तहकीक वो चीज़ है जो अपनी ज़िंदगी में हर बंदा सरअंजाम हर लम्हा दे रहा होता है, क्योंकि इंसान के साथ मसाइल हर लम्हा रहते हैं। उन मसाइल को हल करने के लिए हर इंसान जो है तहकीक कर रहा होता है। लेकिन फ़र्क है पढ़े लिखे बंदे की तहकीक करने में और अनपढ़ आदमी की तहकीक करने में। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि पढ़े लिखे की तहकीक में क्या फ़र्क होता है। पढ़े लिखे की तहकीक जो है वो सिस्टमेटिक होती है, यानी कि एक ख़ास प्रोसेस के ज़रिए से होती है। उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, उसमें कुछ आउटपुट्स होती हैं। बहरहाल हम उसकी डिटेल में ज़्यादा इस वक्त नहीं जा सकते। अच्छा, ये रिसर्च होती कितनी टाइप्स की है? बेसिकली जो रिसर्च है ये दो ही टाइप्स की होती है। एक को हम बेसिक या प्योर रिसर्च कहते हैं और दूसरी को हम अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। ठीक है, बाकी जितनी भी टाइप्स हैं वो इन्हीं दो की सब टाइप्स होती हैं। सही है। अब मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि जो बेसिक रिसर्च होती है या प्योर रिसर्च जिसको हम कहते हैं, उसमें हम नई थ्योरीज जनरेट करते हैं। सही। ठीक है, हम नया, पहले कुछ नहीं होगा, हम नई चीज़ को सामने लेके आएंगे, उससे पहले उस चीज़ का वजूद नहीं होगा। ठीक है, और जो अप्लाइड रिसर्च है वो ऑलरेडी रिसर्च मौजूद है, हम उसको किसी भी मसले को सॉल्व करने के लिए उसको अप्लाई करते हैं। मैं मिसाल देता रहता हूँ, अक्सर देता रहता हूँ कि मिसाल के तौर पर जिस तरह से मोटिवेशन की थ्योरी है, ठीक है, सज़ा जज़ा का कॉन्सेप्ट है, हम बच्चों को पढ़ाते हैं और अब बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तो आप यहाँ उसको सज़ा का खौफ दिलाओगे या फिर आप उसको जज़ा कुछ इनाम का लालच दोगे, तो वो फिर पढ़ना शुरू हो जाएगा। ये ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी हैं, हम इसको अप्लाई करते हैं। तो रिसर्च दो किस्म की होती है, एक प्योर और एक अप्लाइड। प्योर के अंदर हम थ्योरी जनरेट करते हैं और अप्लाइड के अंदर हम थ्योरी को टेस्ट करते हैं। अच्छा, रिसर्च का आगाज़ तो सवाल से होता है, लेकिन इसके अगले स्टेप्स क्या होते हैं? स्टूडेंट्स किन स्टेप पर आगे अमल करें तो वो अपनी रिसर्च पूरी कर सकता है? देखिए, अभी जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे थे कि रिसर्च जो है किसी ख़ास टॉपिक पे होती है, किसी ख़ास रिसर्च प्रॉब्लम पे होती है। जब टाइटल हो गया सेट, उसके बाद आपने सवाल बना दिए, सवाल भी आपको मिल गए जो आपने लिटरेचर रिव्यू किया, उसको हम कहते हैं प्रीलिमिनरी लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, यानी हम थोड़ा सा लिटरेचर रिव्यू कर लेते हैं, उसमें हम देख लेते हैं कि ऑलरेडी इस पर क्या क्या काम हो चुका है, उससे हमें कुछ सवालात जन्म लेते हैं। उन्हीं सवालात का हमने जवाब देना होता है। और इसके अंदर जो सबसे अहम चीज़ होती है, हमने दो किस्म का डेटा कलेक्ट करना होता है। आम तौर पर हम दो ही किस्म का डेटा कलेक्ट करते हैं, एक को हम कहते हैं प्राइमरी डेटा और एक को हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा वो होता है जो कि डायरेक्ट मैंने नहीं लिया, किसी और ने काम किया, किसी और ने किताब लिखी, किसी और ने रिसाला लिखा और मैंने उससे वो चीज़ मुस्तार ले ली और मैं फिर क्रेडिट उसका उसी को दूंगा, यानी कि उसका नाम बाकायदा मेंशन करूंगा कि रेफरेंस दूंगा कि उसको साइट करना, इसको हम कहते हैं, मैं उसको साइट करूंगा कि ये मटेरियल मैंने उससे लिया है। ठीक है, हम उसको क्रेडिट देते हैं कि ये मेरा काम नहीं है, ये उसका काम है। ठीक है, और जो प्राइमरी डेटा होता है वो होता है जो कि एक रिसर्चर डायरेक्टली खुद हासिल करता है। मसलन मिसाल के तौर पर, अब सेकेंडरी डेटा किस तरह से हम हासिल करते हैं? सेकेंडरी डेटा हम हासिल कर सकते हैं बुक्स से, सबसे बड़ा सोर्स है। रिसर्च जर्नल से, आर्टिकल हम पढ़ते हैं, किसी और ने आर्टिकल लिखा, मैं उसको एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से न्यूज़पेपर हो गए, बाकी रिसाले वगैरह, ये सारे सेकेंडरी डॉक्यूमेंट हैं। और प्राइमरी डेटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा वो होता है कि जो मैं डायरेक्टली हासिल करता हूँ। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इंटरव्यू किसी से करता हूँ, जैसे आप मुझसे इंटरव्यू कर रहे हैं, ये आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से आप
क्वेश्चनियर करते हैं, बाकायदा एक आपने कुछ सवालनामा बना लिया और लोगों में तकसीम कर दिया, वो आपका प्राइमरी डेटा कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, वो भी प्राइमरी डेटा का हिस्सा है। ऑब्जर्वेशन से क्या मुराद है कि मसलन कोई इंसिडेंट हुआ है, सही, आप बजाते खुद उधर चले जाते हैं, सही। जब आप खुद उधर से डेटा कलेक्ट करोगे ये आपका प्राइमरी डेटा कहलाएगा। लेकिन अब मैं यहाँ पर आपको एक भी और भी वजाहत कर दूँ, मसलन एक इंसिडेंट हुआ है, आप खुद नहीं जाते, आप मुझसे कहते हैं कि सर आप जा रहे हैं तो आप मेरे लिए भी वहाँ से जो चीज़ आप करोगे वही चीज़ मैं भी नोट कर लूँगा, तो वो आप प्राइमरी डेटा नहीं है, वो उस शख्स जो खुद गया था उसके लिए प्राइमरी डेटा है, जिसने उससे लिया उसके लिए वो सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। अच्छा सर, ये एकेडमिक रिसर्च की बात हो रही है और इसमें अगर डेटा कलेक्ट हो गया, इसके बाद अहम स्टेप कौन सा है? देखें, एकेडमिक रिसर्च के अंदर सबसे अहम जो स्टेप्स, हर स्टेप अहम होता है, ज़ाहिर है आप किसी भी स्टेप को अगर गलत परफॉर्म करेंगे तो ओवरऑल आपके रिज़ल्ट ख़राब हो जाएंगे। डेटा आपने सही तरह से कलेक्ट नहीं किया है, फेक डेटा लिया है, जिस तरह से हमारे यहाँ अक्सर लोग ऐसा करते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपके ज़ाहिर रिज़ल्ट जेन्युइन नहीं होंगे। सही, ठीक है, तो इसके बाद जो सबसे अहम स्टेप है वो डेटा एनालिसिस का होता है। सही, एनालिसिस हम बेसिकली किस चीज़ को कहते हैं? हम कहते हैं कन्वर्टिंग ऑफ डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, यानी कि एक रॉ मटेरियल है उसको आप इंफॉर्मेशन में जब आप बदलते हैं तो इस प्रोसेस का नाम एनालिसिस है। ठीक है, अब एनालिसिस मोस्ट क्रूशल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, और आम तौर पर मैं इसकी एग्जांपल इसी तरह से दिया करता हूँ कि इसकी मिसाल ऐसे ही है कि मसलन आपने कोई दोस्तों के साथ आपका प्रोग्राम है और आपने सोबत बनानी है, पुलाव बनाना है, कोई सालन बनाना है, तो आप मार्केट जाते हैं और आपने रेलेवेंट डेटा लिया। ज़ाहिर है, देखें, रेलेवेंट होना, डेटे का रेलेवेंट होना बेहद ज़रूरी है। मसलन अगर आपने सोबत बनानी है तो आप पुलाव का सामान लेके नहीं आओगे, सही है, ठीक है ना, और अगर आपने पुलाव बनाना है तो फिर आप सोबत या किसी और चीज़ का सामान, मतलब जो चीज़ आपने बनानी है उसी का आपने मटेरियल बराबर करना है। अब होगा क्या कि मसलन आपने कोई पुलाव बनाना है और मार्केट में आप गए, आप बेहतरीन टमाटर लेके आ गए, घी भी आपने अच्छे वाला ले लिया है, सब कुछ, यानी कि डेटा आपने बेहतरीन कलेक्ट किया है। सही है। अब अहम चीज़ क्या है उसमें? एनालिसिस। एनालिसिस से क्या मुराद है? वो जो अभी मैंने आपको मिसाल दी उसको पकाना। सही, अब बेहतरीन डेटा आप लेके आए थे, लेकिन अगर आपसे पकाने में थोड़ी सी चूक हो गई, नमक थोड़ा सा तेज़ हो गया या कम हो गया, तो उस चीज़ की क्वालिटी में फ़र्क आ जाएगा। सही है। ठीक है, तो जो सबसे अहम स्टेप है वो डेटा एनालिसिस है, यानी कि डेटा आपने बेहतरीन कलेक्ट किया हुआ था लेकिन आपने उसको सही तरह से मैनेज नहीं किया है, प्रोसेस नहीं किया है, तो उसके रिजल्ट्स जो हैं वो सही नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है। अब हमने डेटा दो किस्म का कलेक्ट किया था, एक को हमने कहा था प्राइमरी डेटा है, दूसरे को हमने कहा सेकेंडरी डेटा है। अब एनालिसिस भी दोनों का अलग अलग होगा और उसके लिए अलग अलग टूल्स होती हैं जिनका जिक्र मैं यहाँ नहीं करना चाहूँगा, ज़ाहिर है क्लास नहीं है ना। तो अब प्राइमरी डेटा को हमने अलग से एनालाइज करना होता है, ठीक है, उसके लिए अलग से टूल्स हैं, और सेकेंडरी डेटा को हमने अलग से एनालाइज करना होता है। और उसके बाद बारी आती है एनालिसिस के बाद रिजल्ट्स जनरेट करने की। मसलन आपने प्राइमरी भी एनालिसिस कर लिया है, आपने सेकेंडरी एनालिसिस भी कर लिए हैं, अब उन दोनों से अखज़ आपने क्या किया, वो समरी जो है वो आपके रिजल्ट्स हैं, वो आपका कंक्लूजन कहलाएगा। आम तौर पर ये स्टूडेंट्स को बड़ा इंकरेज किया जाता है कि आप कोई आर्टिकल लिखें, रिसर्च आर्टिकल लिखें, तो फिर वो इसको कैसे लिखें? देखें, सेम प्रोसेस रहेगा। रिसर्च थीसिस थोड़ा सा लेंथी होता है और जो रिसर्च आर्टिकल जो है वो थोड़ा सा लिमिटेड होता है। मैं आपको इस एग्जांपल इस तरह से दे सकता हूँ कि रिसर्च थीसिस के अंदर फ़र्ज़ किया आपने कोई से 4 वेरिएबल्स को डिस्कस किया था। रिसर्च आर्टिकल जो है अब आप हर एक वेरिएबल पे अलग अलग निकाल सकते हो, यानी कि रिसर्च वेरिएबल एट अ टाइम एक ही वेरिएबल को एड्रेस कर रहा होगा और उस वेरिएबल के अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको वो किया जाएगा। देखिए, रिसर्च यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि रिसर्च आर्टिकल जो लिखने वाले हैं उनको मेरी यही सजेशन रहेगी कि रिसर्च आर्टिकल का भी आगाज़ हम रिसर्च क्वेश्चन से करते हैं। आपके जहन में सिंगल रिसर्च क्वेश्चन होगा जिस एरिया, जिस टॉपिक पे आप लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, और फिर आपने औरों का लिटरेचर पढ़ना है कि औरों ने इस पर क्या क्या काम किया है, ठीक है, और फिर उससे आपने कोई चीज़ अखज़ करके अपने सवालात बना के आपने उन सवालात का जवाब देना होता है। मिसाल के तौर पर आपने एक रिसर्च हुई
अमेरिका के अंदर, उसके रिज़ल्ट्स कुछ और थे। आपने पाकिस्तान के अंदर उसी रिसर्च को किया है, उसी आर्टिकल को लिखा है, उसी टॉपिक को एड्रेस करने की कोशिश की है, और फिर आपने यही देखना होगा कि क्या जो अमेरिकन सोसाइटी थी वहाँ पर जो रिज़ल्ट्स आ रहे थे, यहाँ पर भी क्या वो वही रिज़ल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। सही। सर, आप अपने ज़ाती वक्त में कौन सी किताबें पढ़ते हैं? देखें, जिस तरह से हम BS लेवल पर पढ़ा रहे हैं, तो ज़ाहिर है BS के हमें हर सेमेस्टर में मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ पढ़ाने पड़ते हैं, तो उसमें हम आजकल अपने स्टूडेंट्स को फिर से बुक रीडिंग की तरफ ले के आना चाहते हैं। तो स्टूडेंट उसी वक्त बुक को पढ़ेगा जब मैंने पढ़ी होगी। सही है। ठीक है, एक तो ये हो गया जो हम कोर्स की बुक्स पढ़ते हैं। दूसरा ये है कि ज़ाहिर है लिखना, लिखाना, पढ़ना, पढ़ाना ये हमारा पेशा है, काम है। तो इसको लेके हम ज़ाहिर है जब हमने लिखनी होती है कोई चीज़, तो उसके रेलेवेंट बहुत सारी मटेरियल को हमें खुद पहले पढ़ना पड़ता है। तो मैं रिसर्च के मुतालिक जो है ज़्यादा अपनी रिसर्च जो मैं कर रहा होता हूँ उसके साथ रेलेवेंट बुक्स को ज़्यादा मैं स्टडी करता हूँ, और जो भी उसमें मतलब जो रेलेवेंट बुक्स हों, आजकल ज़ाहिर है इंटरनेट सबसे बड़ा सोर्स है, आपको बुक्स अवेलेबल होती हैं। सर, आपकी कामयाबी का क्या राज है? देखें ज़करिया साहब, कामयाबी को डिफ़ाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मेरा कुछ शौक़ हैं। जैसा मैं रिसर्च बहुत ज़्यादा शौक़ से करता हूँ, मुझे अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और जब मैं सही तैयारी के साथ उनके क्लास में जाता हूँ तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है, खुशी महसूस होती है। और आजकल जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा काबिल हैं, बुक रीडिंग हैबिट उनमें डेवलप हो चुकी है। और हम तमाम जो टीचर्स हैं यहाँ के, हम कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको हम बुक रीडिंग्स की तरफ लेके आएँ, क्योंकि बुक रीडिंग की हैबिट जो है वो ख़त्म होती जा रही है। हमारे माशरे में बुक रीडिंग बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है, तो उसको हम रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। ख़ुद भी हम उनको पढ़ते हैं और राग़िब करते हैं स्टूडेंट्स को। देखें, अब मैं कामयाबी की तरफ आता हूँ, और वो कोई भी शख्स हो उसको कामयाबी 3 चीज़ों से हासिल हो सकती है। एक मेहनत, लगन और शौक़। ये 3 चीज़ें अगर किसी में मौजूद हैं तो अल्लाह ताला भी उसकी मदद करता है। सर, स्टूडेंट्स को आप नए आने वालों को क्या पैगाम देंगे? देखें, स्टूडेंट्स के लिहाज से अगर आप बात करना चाह रहे हैं तो मैं यही हमेशा से सजेस्ट करता आया हूँ कि मेहनत का सिला हर शख्स को मिलता है, और कुदरत हमेशा हर एक शख्स को उसकी मेहनत का सिला किसी न किसी रंग में ज़रूर देती है। तो स्टूडेंट्स में जो कमी पाई जाती है, जो उनकी खामी है, वो है लगन की, शौक़ का ना होना, शॉर्टकट्स की तरफ जाना। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा अपने स्टूडेंट्स को, आपके व्यूअर्स को, कि वो अपने अंदर शौक़ पैदा करें, लगन पैदा करें, मेहनत करें। अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है। देखें, दुनिया ने अगर तरक्की की है, हम सुनते हैं, बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि जापान में हर बंदा मेहनत करता है, चाइना में हर घर का फ़र्द काम करता है। वेस्टर्न कौमों ने बहुत ज़्यादा तरक्की की क्योंकि उन्होंने मेहनत की, तहकीक की। जिस रिसर्च की हम स्टार्ट में बात कर चुके हैं, उन्होंने रिसर्च को अपनाया हुआ है, और जो हमारे अंदर फुकदान है वो यही है कि हम रिसर्च को अडॉप्ट नहीं करते हैं। देखें, स्टार्ट में ज़ाहिर है आप अच्छा काम नहीं करेंगे। हमने भी जब स्टार्ट लिया था तो हमें भी, हमारे काम को भी कोई ख़ास वैल्यू नहीं थी उसकी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होता है। कोई भी जब साइकिल चलाना सीखता है तो अचानक से वो साइकिल नहीं सीख जाता, पहले गिरता है, संभलता है, फिर वो एक्सपर्ट बन जाता है। कोई भी गाड़ी चलाना शुरू करता है तो पहले ही दिन से वो एक्सपर्ट नहीं होता है, आहिस्ता आहिस्ता हो जाता है। तो तहकीक को अपनाना चाहिए। रिसर्च ही में हमारी फलाह है, हमारी ज़िंदगी के मसाइल रिसर्च के ज़रिए से ही हल हो सकते हैं, और इसकी एग्जांपल भी आपके सामने है। ये सारी तहकीक ही तो है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरक्की है। ये जितनी भी हम आसाइशें, सहूलियात अपना रहे हैं, ये हमें रिसर्च की ही बदौलत मिली हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच, यू आर वेलकम।